ਭਗਵੰਤ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੀਬੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਰਡਰ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ। ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੋਲਡੀ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਨਾਹ। ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਰਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ ਅਹਿਮ ਸੁਰਾਗ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਿਆ ਸ਼ੱਕੀ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਲਾਸ਼। ਸੋਹਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਹੋਇਆ ਫਰਾਰ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ। ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਸਾਫਰ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਨਖਾਹ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ। ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤਸੱਲੀ। ਕਾਮਨ ਰਿਵਿਊ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼। ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿੜੇ ਚਿਹਰੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान। जेलां सुधार घर भी कहा जाता है पर यह जेलां खूनी साजिश का अड्डा बन चुकिया ने। जी हां, इन्हां जेलां दे अंदरों गैंगस्टर रंगदारी तो मंग ही रहे ने पर इन्हां जेलां दे विच की जा रही है प्लैनिंग कतल करन दी, प्लैनिंग कतलेआम मचाउण दी। और यह प्लैनिंग कौन कर रहा है? यह प्लैनिंग कर रहा है वो शख्स जिहड़ा 7 समंदर पार बैठा है और जिहड़ा पंजाब दे विच हुण तक 2 ਵੱਡੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਕਈ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਗੋਲਡੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਵੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ। ਉਸ ਕਤਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ डेरा प्रेमी के कतल की फरीदकोट जेल के साजिश कड़ी गई सी। ताज़ा अपडेट यह है पंजाब दी जेलों में गोल्डी के कई गुरगे बंद ने। जेलों तो ही गोल्डी नूं शूटर भी मुहैया कराए जा रहे हैं। मूसेवाला के कतल लई भी जेलों तो ही शूटर मुहैया कराए गए सन। दिल्ली की तिहाड़ जेल के विच मूसेवाला कतल की साजिश कड़ी गई सी। यानी 7 समंदर पार एक शख्स बैठा है और 7 समंदर पार बह के वो लगातार साजिशां कर रहा है पंजाब के विच कतलेआम मचाण दी। ते किस तरीके जेल तो एक खूनी साजिश रची जा रही है। जेल तो खूनी साजिश और 2 चेहरे सिद्धू मूसेवाला ते डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह राजू ते सिद्धू मूसेवाला 2 ਵੱਡੇ कतल ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾजिश ਇਹ ਘੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਗਈ? ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲकांड। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਟਰਸ ਫੜੇ ਗਏ उन्होंने हिदायत कौन दे रहा सी? जेड़ा रैकी करने वाला फड़िया गया वो कह रहा मैंने हिदायत गोल्डी बराड़ दे रहा सी। मैं गोल्डी बराड़ नूं तस्वीरां क्लिक करके भेज रहा सी और कंफर्म कर रहा सी। और इस सब दे विचाले खूनी साजिश दा अड्डा पंजाब दीयां जेलां बणियां ने। पंजाब दीयां जेलां विच ट्रिंग एक घंटी वजदी है। एक घंटी साधारण फोन दी नहीं,
एक घंटी मोबाइल फोन दी, और मोबाइल फोन भी छोटे मोटे मोबाइल फोन नहीं, स्मार्टफोन, स्क्रीन वाले फोन, टच फोन ते 6 महीनों ਦੇ ਵਿੱਚ 3600 फोन बरामद होए ने जेलों चो। सरकार कोशिशां कर रही है, औसतन हर महीने 600 मोबाइल फोन, और हर महीने 600 मोबाइल का मतलब रोजाना 20 मोबाइल फोन पंजाब ਦੀਆਂ जेलों तो बरामद हो रहे ने। इसका अंदाजा लाया जा सकता है, हर महीने जेकर 600 मोबाइल बरामद होंगे ने तो 20 रोजाना हो रहे ने, और अमृतसर जेल तो 750 मोबाइल फोन बरामद होए ने। एक कोशिशां ने सरकार ਦੀਆਂ कोशिशां, जिसका दावा सरकार कर दी है कि ਅਸੀਂ कोशिश कर रहे हैं, किसी भी तरीके का नैक्सस ਜਿਹੜਾ है वो चल नहीं दिता जाएगा। पर पटियाला जेल तो 450 फोन बरामद होंगे ने, 450 फोन पटियाला तो 750 अमृतसर तो बरामद होंगे ने। और इशारा किस पासे है? इशारा इस पासे है कि कोशिशां बेशक हो रही ने, पर हजे भी सिलसिला रुकिया नहीं। नाभा जेल 37 फोन बरामद होए ने, और यही वो नाभा जेल है जिस नाभा जेल ब्रेक ने पंजाब सरकार दी, उस वेले दी सरकार दी जड़ा हिला दित्तियां सन। जेलों के 33,000 कैदी बंद ने, 33,000 कैदी जिहड़ा हैगा जेलों के बंद ने इस वेले। की ये जेल की कैपेसिटी के मुताबिक है? सवाल इत्थे भी है पंजाब दी जेलों के किन्ने कैदी हो सकते हैं, और जिहड़ी गिनती हैगी है 33,000 कैदियों की, कि जेलां ओवर क्राउडेड तो नहीं, कि जेलां ओवर बर्डन तो नहीं, ये सारे सवाल ने। तुहानूं दस दईए कि 6 अगस्त 2022 फरीदकोट जेल का सहायक सुपरडेंट जिहड़ा सीगा, डिप्टी सुपरडेंट, उसनूं अरेस्ट किया गया सीगा, और इल्जाम बड़े संगीन लगे सीगे। इल्जाम ये लगे सीगे कि वो शख्स हैरोइन और नशा अते मोबाइल जिहड़ा हैगा मुहैया करांदा सी। 78 ग्राम हैरोइन, मोबाइल ते कैश जिहड़ा हैगा उसदे कोल बरामद होया। गोइंदवाल जेल का डिप्टी सुपरडेंट बलबीर सिंह 13 अक्तूबर 2022 ਨੂੰ गिरफ्तार होया, और उसते भी इल्जाम संगीन लगे। इल्जाम की लगे सीगे? मोबाइल मुहैया कराने का इल्जाम। तुहानूं दस दईए गोइंदवाल की जेल भी सुर्खियां दी विच आई जदों उत्थों फड़े गए गैंगस्टर्स ने खुलासा किया कि असीं अंदर बह के प्लानिंग कर रहे थे। 27 अक्तूबर 2022 अमृतसर जेल का मैडिकल अफसर गिरफ्तार किया गया। इल्जाम की लग्या सीगा? कैदियां नूं नशा पहुंचाण दा इल्जाम लग्या सी। इल्जाम संगीन लगदे ने, और इल्जाम किस ते लग रहे ने? एक कैदियों ते इल्जाम नहीं लग रहे, हवालातियां ते लग रहे, मुलाजमां ते लग रहे ने। 11 नवंबर 2022 फरीदकोट जेल का डिप्टी सुपरिटेंडेंट गुरचरण धालीवाल गिरफ्तार किया गया। इल्जाम लगते ने मोबाइल ते नशा मुहैया कराने दे। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल जिसकी जिम्मेवारी होंदी है, जिसकी ड्यूटी होंदी है कि वो जेल के अंदर जिहड़ा हैगा व्यवस्था खराब ना होवे, इस ते पूरा जोर दे के रखेगा। 6 अगस्त 2022 ਨੂੰ फरीदकोट जेल का सहायक सुपरडेंट गिरफ्तार किया गया। 78 ग्राम हैरोइन, 67,000 की नकदी बरामद हुई। सिलसिला चलता आ रहा है, और ये कोई पहली बार नहीं है, ये कोई पहली बार नहीं है। कड़ियां जड़ियां ने अगस्त तो शुरू होकर अक्तूबर नवंबर तक जाके कड़ियां जुड़दियां ने, और ये कड़ियां किस पास से इशारा कर दिया ने? जेलों के अंदरों जो कुछ नेक्सस चल रहा है वो किसकी निगरानी हेठ? कि गैंगस्टर अंदर बैठे बैठे अपनी पूरी एक कह ले जावे कि टेलीकॉम एक्सचेंज चला रहे ने, ते पूरे का पूरा सिनेरियो जिहड़ा है वो सिनेरियो जिस पास से इशारा करता है। मेरे दो अहम सहयोगी मनोज राठी चंडीगढ़ तो मेरे नाल जुड़ रहे हैं, और शंकर आनंद दिल्ली मेरे नाल जुड़ रहे हैं। दोवां दे नाल गल करांगे। शंकर, सबसे पहले आपके पास आऊंगा, क्यों तिहाड़ जेल, कोई भी पंजाब में कत्ल की वारदात हो, सीधे असीधे, प्रत्यक्ष परोक्ष हर तरीके से जाकर तार जुड़ते हैं तिहाड़ जेल से। और कैदियों के पास, गैंगस्टर्स के पास एक बहुत बड़ा बहाना होता है कि देखिए हम तो सुपर हाई सिक्योरिटी जेल तिहाड़ जेल में बंद थे, हम कैसे कोई साजिश कर सकते हैं, हम कैसे कोई मोबाइल ले जा सकते हैं। लेकिन स्मार्टफोन्स पर बातें हो रही है, सिग्नल ऐप पर बात हो रही है। सिग्नल ऐप पर गोल्डी बराड़ निर्देश दे रहा है तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर्स को। यह कैसे, शंकर? देखिए, निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी साजिश इस लिहाज से कही जा सकती है कि चाहे राजधानी दिल्ली के तिहाड़ जेल की बात करें, तिहाड़ जेल जो देश का सबसे बड़ा जेल कहा जाता है, यहाँ की बात करें, या पंजाब के नाभा जेल की बात करें, या दूसरे अन्य जो जेल हैं पंजाब में, हरियाणा में, तो वहाँ की बात करें, तो वहाँ के गैंगस्टर किस तरह से जेल के अंदर में रह करके और इस तरह का नेटवर्क चलाते हैं, और कई दूसरे जो गैंगस्टर हैं उसके साथ में संपर्क में जुड़े हुए थे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है, और इस मामले पर हालांकि कई बार कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि जेल के अंदर में जो एक लापरवाही होती है उसका सीधा तौर पे फ़ायदा ये गैंगस्टर और गैंगस्टर के गुर्गे उठाते हैं, और शायद इसी का तकाजा है कि इसका फ़ायदा उठा करके वो अपने नेटवर्क को आगे बढ़ाते हैं, और जेल के अंदर से रह करके बड़े बड़े गैंगस्टर दूसरे लोगों को धमकी देना
और सुपारी किलिंग के मामले को अंजाम देते हैं। और एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले पर चाहे पंजाब पुलिस की बात करें, हरियाणा पुलिस की बात करें या दिल्ली पुलिस की बात कर ले, बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है और कोशिश करनी होगी कि गैंगस्टर पर इस तरह पर एक ठोस लगाम लगाया जाए, एक कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। इसके लिए जेल के अंदर से जिस तरह से इन लोगों का नेटवर्क तैयार होता है, उस नेटवर्क पर शिकंजा कसना होगा। बात करें गोल्डी बरार की, देखिए गोल्डी बरार है कनाडा में। अगर बात करें रिंदा की बात करें, वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में है, लेकिन काम कहाँ हो रहा है, सुपारी किलिंग कहाँ दी जा रही है, पंजाब में या राजधानी दिल्ली में। तो एक समझा जा सकता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मंच पे बैठ करके, वहाँ से बैठ करके जिस तरह से एक नेटवर्क साधने की बिल्कुल कोशिश बिल्कुल की जा रही है। शंकर, बिल्कुल और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि विदेश में बैठा गोल्डी बराड़ ये सारे का सारा सिनेरियो तैयार कर रहा है और किस तरीके से इस पूरी तस्वीर में शंकर, अगर पंजाब की आप बात कर रहे थे, पंजाब में तो एक्शन शुरू होता नजर आ रहा है। मनोज दा रुक रहा मैं। मनोज, पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ एक्शन शुरू हो गया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल गिरफ्तार हो रहे ने, इल्जाम बड़े संगीन लग रहे ने। जेल ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ गिरफ्तार हो रहा है और ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ? ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਿटेंडेंट ऑफ जेल और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल मोबाइल भी दे रहे ਸੀਗੇ, ड्रग्स भी मुहैया करा रहे ਸੀਗੇ। मनोज ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੀਬ 33,000 ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਤਿਰ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਜਿਹੜੇ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨਲ ਐਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿਗਨਲ ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰਾਜ ਮਿੰਟੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਤੇ ਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਖਸ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਜਦ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਫਰਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੋਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, डिप्टी सुपरिटेंडेंट गिरफ्तार कर लिया, कार्रवाई करती जेल का मेडिकल अफसर गिरफ्तार कर लिया। शंकर, दिल्ली पुलिस के पास कहने के लिए क्या है? दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के स्पेशल सीपीएचजीएस धालीवाल से सवाल बहुत बार सीधे प्रत्यक्ष परोक्ष हर तरीके से पूछा गया, घुमा फिरा कर भी पूछा गया, पर उनकी मुस्कुराहट बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं देती। उस मुस्कुराहट में सवाल और ज्यादा गहरे हो जाते हैं। शंकर, ये सिनेरियो जो है तिहाड़ जेल का, और तिहाड़ जेल में क्योंकि क्यों ये सवाल उठ रहा है, लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया तिहाड़ जेल से इन सब वारदातों को अंजाम देने के लिए अपने गुर्गों को भेज रहे थे। क्या वहां कोई ऐसा एक्शन होता आपको नजर आया? शायद हो सकता है हमें पता ना लगा हो, आपको पता लगा हो कि तिहाड़ जेल में कार्रवाई हो गई है, कोई अधिकारी या कोई मुलाजिम पकड़ा गया है इस तरीके से इस सारी कार्रवाई के बीच में। शंकर, देखिए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की बात करें या स्पेशल सेल के स्पेशल कमिश्नर एचजीएस धालीवाल की अगर बात करें तो धालीवाल बहुत ही सुलझे और एक कहा जा सकता है शानदार अधिकारी हैं जो गैंगस्टर और टेररिज्म को बेहद करीबी से जानते हैं। और जिस तरह से अगर बात करें, आज से नहीं, मैं उनके तकरीबन 18 साल से मैं उनको जानता हूँ, उनके कार्य करने के तरीकों भी जानता हूँ। लेकिन जिस तरह से गैंगस्टर पर लगातार दिल्ली पुलिस की स्पेशल से जिस तरह से काम कर रही है, तो उन तमाम गैंगस्टर पर नज़र रखा जा रहा है, चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो या राजस्थान हो। यहाँ पर गैंगस्टर किस तरह से एक संगठित होकर एक आपस में ग्रुप बना करके
इस तरह के मामलों को अंजाम देते हैं, तो इस पर नज़र रखी जाती है। लेकिन कई बार दिक्कत क्या होती है कि मामला दिल्ली का है, दिल्ली में यहाँ पर रह कर के प्लानिंग की जाती है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है पंजाब में। तो यहाँ पर दो राज्यों के बीच में किस तरह से एक बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन करना है, ये मसला यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार स्पेशल सेल पे ऐसा कहा जाता है कि भाई ये मामला तो पंजाब में है, लेकिन स्पेशल सेल जाके वहाँ पे ऑपरेशन अंजाम दे रही है। या कई बार ऐसा कहा जाता है कि कई गैंगस्टर जो पंजाब के हैं वो दिल्ली में क्यों पकड़ा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो वजह है कि गैंगस्टर एक जगह होते नहीं हैं, वो अपने नेटवर्क का यूज़ करते हैं। दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली से फ़ोन करते हैं कि पंजाब में यहाँ पे टारगेट को अंजाम देना है, या कनाडा से फ़ोन किया जा रहा है इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से। सवाल तो यही है ना कि दिल्ली की जेल में बंद गैंगस्टर फोन कैसे कर लेते हैं, ये सुविधा दिल्ली की जेल में कैसे मुहैया हो रही है। सवाल तो इसी बात को लेकर है ना शंकर, कि दिल्ली में जेल में बंद गैंगस्टर फोन पे सारी चीजें कैसे कर लेते हैं, क्या खास फैसिलिटी है तिहाड़ जेल में? देखिए इस मामले में अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ये इस तरह के मामले पिछले काफ़ी समय से चला आ रहा है। और ख़ास तौर पर जो सबसे सुरक्षित माना जाने वाला जो जेल है तिहाड़ जेल में ऐसे कई मामले देखने को मिले। लेकिन पिछले कुछ समय के अंदर बताएं तो ईडी और स्पेशल सेल के इनपुट के आधार पर ही तकरीबन 6 दर्जन से ज़्यादा पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जो तिहाड़ जेल के अंदर में कार्यरत हैं और जो लापरवाही करते हैं और जिस तरह से कैदियों को फ़ायदा पहुंचाते हैं, कैदियों के फेवर में काम करते हैं। तो उन पुलिसकर्मियों के तकरीबन 6 दर्जन से ज्यादा। एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगा आपको, एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। हम पंजाब के इंटीरियर में चलते हैं थोड़ा सा। शंकर, एक मिनट के लिए पंजाब के इंटीरियर में चलते हैं। मेरे सहयोगी नरेश सेठी फरीदकोट तो मेरे नाल जुड़ रहे ने। नरेश, फरीदकोट दी जेल सुर्खियां दे विच आ रही है। हर दूजे तीजे दिन असीं खबर चलाने इन्ने मोबाइल बरामद होए, अज इन्ना नशा फड़िया गया, जिन्ने मोबाइल फड़े गए, पर यह सिलसिला रुक नहीं रहा। ग्राउंड लैवल ते क्योंकि तुसीं कवर करदे हो, बिल्कुल इंटीरियर दी असीं गल करिए, जेलों के हालात असल में है कि नहीं नरेश? गगन बिल्कुल दस दी है कि जिस तरह की हुण फिरोजपुर विच जेल सुपरडेंट की जी गिरफ्तारी हुई है साइक सुपरडेंट, तो उससे सिनेरियो जे देखिए तो फरीदकोट की जेल विच भी इसे तरह का टोन एक वरती गई सी। कुछ दिन पहला जे गल करिए तो करीब 3 महीने पहला फरीदकोट के भी साइक जेल सुपरडेंट गिरफ्तार हुई सी, जिस ते इल्जाम सन कि वो जेल के अंदर मोबाइल पहुंचा रहा, नशा पहुंचा रहा, तो किते ना किते दा वरतों जरूर हो रही है। खुलेआम जी वरतों जो अंदर बैठे ने नैक्सस चला रहे हैं, अंदर शरेआम जो मोबाइलों की वरतों होंगी है, और जेल में इन्हों आसानी प्रोवाइड कौन करांदा है? प्रोवाइड करा रहे हैं जेल के ही मुलाजम। और इस तो इलावा गल करिए तो भावें कि जेल प्रशासन दावा करता है कि ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਥਰੋ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਦੀ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਲੁਕੋ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 4 ਮੋਬਾਈਲ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 85 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਾਊਡਰ ਉਸ ਦੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਖਤਰਨਾਕ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ डेरा प्रेमी कतल मामले में, ਜਿਹੜਾ डेरा प्रेमी प्रदीप कुमार का कतल होया उस विच भी इसे तरह का ਜਿਹੜਾ सामने आया ਸੀਗਾ लिंक ਜਿਹੜਾ फरीदकोट की जेल नाल जुड़िया सी, क्योंकि फरीदकोट जेल अंदर बैठा रजिंदर सिंह मनावा पिंड ਜਿਹੜਾ मोगा जिले का रजिंदर सिंह उर्फ राजू, उस दे उत्ते शक की सूई गई सी कि उसका लिंक ਜਿਹੜਾ गोल्डी बराड़ नाल सी। हालांकि ਜਿਹੜਾ उसका बाद विच इस मामले विच नामजद भी उसनू किया गया और उसका लिंक ਜਿਹੜਾ गोल्डी बराड़ नाल सी, और उसे ने किते ना किते ਜਿਹੜੇ फरीदकोट के 2 शूटर ने भुपिंदर सिंह गोल्डी ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੀ ਗਗਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਨਰੇਸ਼, ਇਹੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। लगातार ये दावे हो रहे हैं कि लगातार ये सिनेरियो हो रहे हैं कि जेलों के अंदर कार्रवाई हो रही है, पर बहुत बड़ा सवाल हजे भी एक उस जेल ते है जिहड़ी देश की सब तो ज्यादा सुरक्षित, सब तो ज्यादा कहा जाता है कि सख्ती वाली जेल जिहड़ा हैगा उस जेल नूं लैके कई सारे सवाल ने। बहुत बहुत शुक्रिया
ਮਨੋਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸ਼ੰਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਤਿੰਨੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜੇਲਾਂ ਤੋਂ ਖੂਨੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ और रची जा रही है, किस तरीके जड़ा है खूनी साजिश घड़ी जा रही है और किस तरीके जेलों के अंदर जड़ा है सिनेरियो तैयार हो रहा है। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक तो बाद भी खबरां सिलसिला जारी रहेगा।